أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. Students, we're going to start a new video, and we were just discussing the chapter number 10, and this is the second chapter, and in which we are going to discuss very important topic. Today we are going to make a new video on Lewis concept of acid and basis. You know that before that, what we have studied about the Arrhenius concept and also the Bronsted concept, in both theories, we know even you're not able to decide whether the CO2, BF3, NH3, like SO2, whether they were the acids or the base. So that was the main problem why we are going to discuss a new theory. And according to the Arrhenius concept, you see that theory was based on the hydrogen ion, right, and hydroxide ion in the presence of water or aqueous solution. But in case of a Bronsted concept, we have seen that the transfer of proton, you see the capability of the transfer of proton was called an acid, and the capability to accept the proton was called the base. But the trouble was that it was not fully decided whether the CO2, as I have already mentioned to you, SO2, BF3, NH3, were the acids or the bases. And in that case, when we don't have any extra proton, when we don't have any extra H plus or OH negative, how we will decide whether this is an acid, this is base? So that was the main problem why that particular theories were just failed. So today, I'm just going to start the new theory. This is called the Lewis concept. And since this is such an important topic, for example, the mostly examiner would always prefer this topic to give you an exam. He's generally given this topic in a detail as a long question, 4 to 5 marks, right? Sometimes he's giving just how can you explain NH3 BF3 formation. So in these type of the question, he is just trying to just asking a question from this topic. So let's start the lecture. I'm just going to explain this topic in Urdu as well, because some students are just asking me that, sir, we are not better to understand the English properly. So if you can just give us this lecture in Urdu. So okay, I'm just going to give you the lecture in Urdu as well. Don't worry about it. So let's share the first of all what the kind of the topic is. I've already made some kind of a notes for you people, and I'm going to discuss this topic today. I'm going like sharing a lecture on the computer screen. Okay, so this is my lecture, students. First of all, check it out, the Lewis concept of acid and bases. Lewis in 1923, students, his name was G.N. Lewis. He proposed an acid-base theory. And according to this theory, look at that, according to definition, it's very clear that the Lewis acid is a substance that could be a molecule or an ion, right? And that can accept a pair of electron. You see, this is the base is to accept a pair of electron. The first thing is to accept the pair of electron. The second thing in this theory is to make a coordinate covalent bond. Mean this definition of acid or a base, first of all, depend upon the pair of electron. The thing which will able to accept a pair of electron is so called as the Lewis acid. The thing which will able to donate the pair of electron is so called as Lewis base. So this theory basically depend upon the pair of electron. It's very simple, students. Let me tell you in a very simple words. According to this definition, the thing which is called the Lewis acid, it must be deficient of the electron pair. And the thing which is so called as a Lewis base, it must have the extra electron to donate to the other side. The first thing is this one. Then go into the second one from this definition, to make a coordinate covalent bond. You see, coordinate covalent bond and normal covalent bond is some difference. Normal covalent bond is basically formed by the mutual sharing, but the coordinate covalent coordinate covalent bond is formed by the transfer of the pair of electron from one atom into another atom. So that is why in this theory, students, what we are going to discuss, we are going to discuss the definition, simple definition, that the Lewis acid is basically kind of a molecule or ion, right, that has the
ability to accept a pair of electron to make a coordinate covalent bond, while the Lewis base is a kind of a molecular ion, right, that have the ability to donate a pair of electron to form a coordinate covalent bond. I'm going to repeat this one in Urdu as well for those who are not understanding the proper in English. तो बच्चों देखो, मैंने सिंपल सी बात की कि लेविस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की पावर रखता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और साथ ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बनाने की सलाहियत रखता है। पहली शर्त क्या हुई? इलेक्ट्रॉन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करना लेविस एसिड के लिए, और साथ ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट का बनना। लेविस बेस पे कौन सा मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, सब्सटेंस होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? डोनेट करेगा, और साथ ही वो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो बनाने की सलाहियत रखेगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं NH3 और BF3 फॉर्मेशन में। लुक एट दैट इन NH3 BF3 फॉर्मेशन। आप अगर देखेंगे NH3 को, ठीक है, मैं यहां से इसको हाईलाइट करता हूं। आई थिंक आई हैव टू यूज अ पेंसिल। आप लोग ये पेंसिल यूज करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। देखिए BF3, ठीक है, और इसी तरह अगर हम NH3 की बात करें, सबसे पहले BF3 की बात कर लेते हैं। तो BF3 में आप देखेंगे कि जो B है यानी बोरॉन है, तो ये देखें एक इलेक्ट्रॉन इसका इस फ्लोरीन के साथ, ठीक है, यानी एक पेयर तो इसका इसके साथ आ गया, ठीक है। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना, और साथ ही फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड हो गया, ठीक है बेटा जी। अच्छा, और तीसरा जो है इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला, और ये एक और आ गया, और ये हमने इसको, यानी देखिए BF3 के पास जो इलेक्ट्रॉन है राइट नाउ, अगर आप देखिए 2 ये जो कि शेयरिंग हो रही है, 2 ये 2, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट इज नीडेड फॉर? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल, या टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। और इसी तरह से अगर हम एमोनिया की बात करें बेटा, NH3 की बात करें, तो देखिए एमोनिया के केस में मैं इसका स्ट्रक्चर सिंपल आपको बता रहा हूं कि इसके आउटरमोस्ट शेल, अगर एमोनिया की बात करें, तो इसके पास या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमोनिया BF3 की तरफ, ठीक है, डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट कर देगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो चीज डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों, वो क्या हो जाती है? दैट इज सो कॉल्ड एज बेस। हम इसे बेस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे इट इज अ बेस, ओके। और जो चीज एक्सेप्ट कर लेती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड Lewis acid. So ammonia will considered here a Lewis base, while BF3 will be considered here as a Lewis acid. Simple, बिल्कुल कोई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि हम इसको देखें कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद मजीद देखते हैं जी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब देखिए ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर खुद भी ड्रा करके दिखाया, मैं इसको जरा थोड़ा फोकस करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा समझ आए। इसको कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा करूँ, और इसकी मुझे ऑप्शन लाने दें, देन इंशाल्लाह यू विल फाइंड। अच्छा, चलें इसको क्या, अब देखें लाइक ये आ रहा है। अब एमोनिया में, एमोनिया के देखें, ये मैंने आपको पहले भी शो किया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, मैं आपको ये क्लिक करके दिखा रहा हूँ। NH3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, BF3 में इसको यहाँ पे शॉर्टेज है, तो ये एमोनिया बेटा यहाँ से, ठीक है, डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, और ये BF3 की तरफ चला जाएगा, और BF3 इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि जो चीज एक्सेप्ट करती है वो क्या बन जाती है? Lewis base. So BF3 will act as a Lewis base. And what about ammonia? Ammonia will act as over here a Lewis base. और ये फिर इस तरह से NH3 BF3 का एक आपके सामने बन रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फर्दर आपको दिखाया गया है कि NH3 का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें देखिए आपको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फालतू नजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये लेविस बेस के तौर पे काम कर सकता है। व्हाट अबाउट वाटर? वाटर में देखिए, वाटर में भी ऑक्सीजन के पास देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं, तो वाटर भी लेविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। CH4 को देखिए इसके स्ट्रक्चर में, तो CH4 के पास भी आप देखेंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन NH3 और वाटर में तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, देखिए कि इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है।
अब आते हैं, जरा कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी चीज है जिसको हम आसानी से लेविस एसिड को पहचान लें कि ये लेविस एसिड है, और कैसे पता चले। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स मैंने आपको लोगों के लिए बनाए हैं। पहला देखिए, पहली ये है कि वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, यानी सेंट्रल एटम, जैसे पहले बी था हमने शो करे, वो सेंटर में रखा होता, एक एफ इधर था, एक एफ इधर था और एक एफ इधर था, और सेंटर में बी था, और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो वो पर्टिकुलर एटम जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रहा हो, जैसे वो BF3 हो सकता है, वो LCl3 हो सकता है, वो FeCl3 हो सकता है, इन तमाम एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिहाजा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल देखें, सिंपल कैटाइन कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड्स। ऑल कैटाइन, अब देखिए जितने कैटाइन है ना बेटा, कैटाइन में क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा होता है, इसका मतलब है उनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या बन सकता है, वो लेविस एसिड के तौर पे। इसका मतलब Na प्लस लेविस एसिड है, K प्लस लेविस एसिड है, Ca+2 लेविस एसिड के तौर पे कंसिडर हो सकता है। ठीक है, आते हैं एग्जांपल विद लेविस बेस। तो लेविस बेस में हम देखें तो देखिए न्यूट्रल स्पीशीज जो होती हैं that at least one lone pair of electron, for example ammonia है, amines है, alcohols हैं, ये हम इन्हें बेसिकली लेविस स्पेसेस का नाम दे सकते हैं। जैसे अमोनिया में आपने देखा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फालतू था, RnH2 देखेंगे, एमाइंस देखेंगे, ठीक है, और एल्कोहल देखेंगे, इन सब में आपको एक इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब है इन सब को हम लेविस बेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। गोइंग टू द थर्ड वन, The third is negatively charged species or anion for example. अब negatively charged species में जैसे cyanide है, इसके पास माइनस चार्ज है, क्लोराइड आइन है, इसके पास माइनस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आइन है, इसके पास माइनस चार्ज है। ये जितने भी माइनस वाले हैं ना बेटा, आप इनको आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि सारे लेविस बेसिस है। ठीक है, तो कितना आसान है, वो तमाम चीजें जिनके ऊपर प्लस आ रहा है लेविस एसिड है, वो तमाम चीजें जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है लेविस बेसिस है। अच्छा, लिमिटेशन, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ना बच्चों हमारे पास ये लिखा हुआ है कि लेविस एसिड की, लेविस बेस की लिमिटेशन कोई नहीं है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। ये बात सही है, इसकी लिमिटेशन बहुत कम है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ये है कि, और आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि इसकी भी बच्चों लिमिटेशन अवेलेबल है। देखिए इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो, आप जैसे मैं देखिए वर्डिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, ऑल एसिड बेस रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तमाम एसिड बेस रिएक्शन में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नहीं बनता, कई दफा ऐसी होती है इसमें लिमिटेशन आ जाती है। तो पहले तो इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो लेविस कॉन्सेप्ट डू नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ वेल नोन प्रोटॉनिक एसिड्स लाइक HCl सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एक्सप्लेन तो करता है लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता। इनके प्रोटॉनिक जो एसिड्स हैं इनको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता उनके बिहेवियर को, और इसी तरह ये थ्योरी फेल हो जाती है जब हम किसी भी चीज की रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड और बेसिस भी यूज करते हैं। यानी जब एसिड और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है तो ये थ्योरी फ्लॉप हो जाती है। बेटा आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी आप जो मैंने आपको टिप बताए हैं कि लेविस एसिड लेविस बेस आप किस तरह फाइंड आउट कर लें, आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के आते हैं कि आपको डिफरेंट जो है वो थिंग्स दे दी जाती है कि इनमें से आप बताएंगे कौन लेविस एसिड है कौन लेविस बेस है। तो मैंने आपको बता दिया जो प्लस जिसके ऊपर चार्ज होता है आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं आप उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की। वन मोर थिंग, समटाइम एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, वो खुद आपको कह देता है, जैसे NH3BF3 के केस में वो खुद आपको कह देता है कि एमोनिया यहाँ पे लेविस बेस है और BF3 लेविस एसिड है। तो अगर इस तरह से वो आपसे बात करे तो थिंग्स आर सो इजी। फिर आपने सिर्फ रेफरेंस देना है, ब्रेन में फौरी क्लिक कर लेना कि जी वो जो लेविस एसिड है वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और लेविस बेस जो है वो डोनर है। इस तरह फिर उसको इसके मुताबिक आपने एक्सप्लेन करना है। आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन नोट्स को भी स्टूडेंट्स सेव कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प देंगे। स्लो स्लो इसको शेयर करें इंशाल्लाह, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और लिखने में भी आपको आसानी रहेगी इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ और जल्द इंशाल्लाह ये वीडियोस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास, एंड दुआ में याद रखना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।